Good morning, friends. Today we are going to start with a new chapter, that is Sale of Goods Act 1930. This act is also called as a SOGA, that is a Sale of Goods Act. Now this act came in force in 1930. It was initially a part of Indian Contract Act. Earlier also I told you that Sale of Goods Act पहले Indian Contract Act का ही पार्ट था, लेकिन 1930 में गवर्नमेंट फेल दैट कि Indian Contract Act has become hefty and there is a need to separate Sale of Goods Act, and so they have separated this act from the Indian Contract Act in 1930. So Sale of Goods Act को बेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही मिला है. तो जो भी प्राइमरी कंडीशन सेक्शन 10 एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो सभी कंडीशंस आर इक्वली एप्लीकेबल टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट आल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एडिशन टू दोज कंडीशंस, देयर आर सर्टेन एडिशनल कंडीशंस दैट इज आल्सो टू बी सेटिस्फाइड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन रिफर दैट. You will see that these are the things we are going to cover under the Sale of Goods Act. That is, first you are going to see with the agreement. What is an agreement? Agreement we have already gone under Indian Contract Act. Agreement is nothing but when two parties enter into certain kind of an agreement. A promise is to do something. That is an agreement. यहाँ पे भी एग्रीमेंट जरूरी है. In the case of an Indian Contract Act, there was an agreement between an offerer and offeree, promiser and a promisee. In the same manner, here there is an agreement between two parties, and that is a buyer and a seller. The first most important things under the Sale of Goods Act is also there has to be an agreement between the buyer and a seller. Then contract of sale talks about transfer of goods, transfer of property, and that property consists of goods. So definition of goods is very important in this particular unit act. There is two types of transfer of property. One is an immediate transfer of property, that is called as a sale, and one is transfer at certain future date, that is called as an agreement to sale. All this we are going to see in detail under this particular unit. Then there is a definition of goods. It is called as a SOGA, Sale of Goods Act. So what is important to be studied under this particular unit is a definition of goods. Now, very important thing under this is this act dealt with only movable goods. It does not talk about immovable goods, neither it covers an immovable good. It covers only movable goods. So it talks about goods. So definition of goods is very important, as the name implies. It is called as the Sale of Goods Act. तो नाम से ही पता चलता है कि it talks about everything related with the goods. यहाँ पे goods तीन टाइप के उन्होंने दिए. One is an existing goods, one is a future goods, and one is a contingent goods. और existing goods भी तीन टाइप के. One is a specific. Now here spelling mistake हो गया. It is specific goods. Then there is an ascertain goods and unascertain goods. ये सब चीज का definition we are going to cover under existing goods. Then there is a future goods. Future goods, as the name implies, future. Future means the goods which are not ready right now. It will be ready somewhere in the future. It is called as the future goods. And contingent goods. Contingent word we have already covered under Indian Contract Act. There was a contingent contract. उसमें अपन ने क्या देखा था कि contingent contract यानी that contract जहां पे एक पार्टी का परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द uncertain future event. That future event is uncertain
वो कॉन्टिजेंट है. सच इवेंट आर कॉल्ड एज अ कॉन्टिजेंट इवेंट. इन द सेम मैनर कॉन्टिजेंट गुड्स यहाँ पे कवर किए गए, जहां पे द परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी यानी गुड्स कॉन्टिजेंट गुड्स है, यानी वो गुड्स अगर आए तो आपको मैं वो गुड्स की डिलीवरी दूंगा. तो सच गुड्स यानी उसका डिपेंडेंसी डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फ्यूचर इवेंट. तो वो गुड्स अगर मैन्युफैक्चर होंगे तो मैं आपको वो गुड्स की डिलीवरी दूंगा. वो गुड्स अभी रेडी नहीं है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने वाले, तो अगर वो मैन्युफैक्चर होंगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू द डिलीवरी ऑफ गुड्स. या फिर वो गुड्स आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, अगर उनसे आपको वो गुड्स मिल गए तो मैं उन गुड्स की डिलीवरी आपको दूंगा. तो ऐसे गुड्स को यहाँ पे कवर किया गया है और ऐसे गुड्स को नाम दिया गया है कॉन्टिजेंट गुड्स. देन इंपॉर्टेंट एलिमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज प्राइस. In the case of Indian Contract Act, we have seen that one of the most important element of any valid contract is a consideration that is exchange of promise between both the parties, quid pro quo. तो यहाँ पे भी quid pro quo है, लेकिन यहाँ पे consideration is in the form of a prize money. यानी अगर मैं सेल की बात करता हूँ, कोई भी पर्टिकुलर सेल जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर हो रहा है, तो वहां पे element of consideration will be in the form of a price, that is money consideration. Then the essentials of valid contract, यहाँ पे बोला गया है कि जो जो भी चीजें सेक्शन 10 में नेसेसरी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, सेक्शन 10 में क्या क्या चीजें जरूरी था. सेक्शन 10 में ये बोला गया था कि देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन. There should be proper offer, proper acceptance, then free consent. Then we have seen that के legal consideration होना चाहिए, legal object होना चाहिए. तो ये सब चीजें जो सेक्शन 10 में कवर की गई है, वो सेक्शन 10 की कंडीशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट का बर्थ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बर्थ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही हुआ है. तो वहां के जो बेसिक कंडीशंस है एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सब एसेंशियल कंडीशंस आर इक्वली एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड विद द सेल ऑफ गुड्स आल्सो. तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर यूनिट. नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड सी कि ये सब चीजें क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर. नाउ द थिंग इज के सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इन फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930. हालांकि सेल से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन तो ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई थी 1930 के पहले ही, लेकिन ये सब चीजें पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया गया था. ये एक्ट सेपरेट नहीं था. 1930 में गवर्नमेंट को फील हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी बड़ा हो गया है, बल्कि हो गया है, तो उन्होंने 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड जितने प्रोविजंस है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया और एक सेपरेट एक्ट बनाया जिसको नाम दिया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. और 1930 में इसका बर्थ हुआ है, सेपरेशन हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और यू कैन कॉल इट एज अ सोगा 1930. नाउ इट केम इन फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930. It is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चेंज कर दिया गया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अभी भी ये चेंज नहीं है और ये इसी तरीके से डिफाइन करता है, इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे कंट्री को एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ यू कैन कॉल इट एज अ यूनियन टेरिटरी. नाउ बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अभी भी यही डेफिनेशन है कि इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. द लॉ रिलेटिंग टू दिस स्टैट्यूट वाज कंटेन्ड इन चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अर्लियर इट वाज कवर्ड अंडर चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और 1930 में ये चैप्टर को डिस्टिंग्विश कर दिया गया है, वहां से सेपरेट करके अलग कर दिया गया.
Where the Sale of Goods Act is silent on any point, the general principle of law of contract will apply. अगर कोई चीज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं लिखी गई, हालांकि वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड विद द सेल, लेकिन वहां पे अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं हो रहे या वहां पे समझ नहीं आ रहा है कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होंगे या नहीं, तो वो बोल रहा है फिर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखो और वहां पे जो लिखा गया है उस प्रोविजंस को, उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करो. तो दिस इज व्हाट एन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें कवर की गई है, एक सेल और एक किया गया है एग्रीमेंट टू सेल. सेल को बोला गया है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल को बोला गया है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. Executed or executory contract we have already covered under the Indian Contract Act only. Also, executed contract का meaning क्या था कि वहां पे the party has performed their promise, it is called as an executed contract. Executory में क्या था कि one of the party or both the party are yet to perform their promise are called as an executory contract. So on the basis of same principle here the sale has been termed as executed contract. सेल यहाँ पे सभी चीज बाय और सेल यानी गुड्स को लेन देन से रिलेटेड रहेंगी, उसके इर्द गिर्द जो है हर एक कंडीशंस, हर एक प्रोविजंस अप्लाई होगा. जैसे कि अगर मैं कोई गुड्स आपको बेच रहा हूं तो जो भी प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो सभी चीजें, ये पर्टिकुलर गुड्स जो मैं आपको सेल कर रहा हूं उसके आजू बाजू में वो सब इर्द गिर्द जो है वो अप्लाई होने वाली है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल अगर मैं कर रहा हूं तो सेल उस चीज का करूंगा जो चीज मेरे पास रेडी है. अगर कोई चीज मेरे पास रेडी नहीं है जो मैं किसी से लेके आपको बेचने वाला हूं या कोई चीज मैं बना के आपको बेचने वाला हूं, तो उस चीज को वो बोल रहा है कि वो सेल नहीं है. सेल को एग्जीक्यूटेड इसीलिए बोला गया है कि वो परफॉर्म हो गया है, यानी यहाँ पे सेलर हैज गिवन द गुड्स टू द बायर या फिर he has transferred the ownership in respect of those particular goods to the buyer. तो वहां पे वो गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर को चली गई है और ओनरशिप उसी गुड्स का ट्रांसफर हो सकता है जो रेडी टू बी सेल है, यानी जो रेडी है जिसका ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हो. जो चीज रेडी नहीं है, जो रेडी होने वाली है, या फिर कोई चीज मैं बनवाने वाला हूं या कोई चीज मैं मंगवा के आपको देने वाला हूं जो आपके आंखों के सामने अभी नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रही है, जो अभी रेडी नहीं है, तो उसको आप एग्जीक्यूटेड नहीं बोलेंगे और एग्जीक्यूटेड नहीं बोलेंगे तो उसको सेल भी नहीं बोलेंगे. तो इसी तरह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक को बोला है सेल जो एग्जीक्यूटेड है, यानी जहां पे गुड्स बायर को दिए गए हैं जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है. और एग्रीमेंट टू सेल का मीनिंग है कि अभी सिर्फ एग्रीमेंट बना है, उसका सेल मटेरियलाइज होगा समवेयर इन द फ्यूचर. क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि वो गुड्स अभी आपके पास रेडी नहीं है. तो जो गुड्स रेडी है उसका बनेगा सेल और उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और जो गुड्स रेडी नहीं है उसको बोलेंगे आप एग्रीमेंट टू सेल, जो फ्यूचर में कन्वर्ट होगा सेल के अंदर. तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल. नाउ विल सी दैट इन डिटेल. व्हाट दे हैव कवर्ड. The term contract of sale is defined in section 4(1) of the Sale of Goods Act as under: a contract of sale of goods act is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer. What it says? It is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for money consideration, that is for price. यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर ये एग्री करता है कि वो गुड्स की डिलीवरी, वो गुड्स की ओनरशिप आपको इमीडिएटली ट्रांसफर करेगा या फिर वो एग्री कर रहा है कि वो समवेयर इन द फ्यूचर ट्रांसफर करेगा. इमीडिएटली ट्रांसफर अगर वो कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सेल, या फिर वो एग्री कर रहा है कि वो फ्यूचर में ट्रांसफर करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कवरिंग बोथ द थिंग्स. इट इज कवरिंग सेल ऑल्सो एंड इट इज कवरिंग एग्रीमेंट टू सेल ऑल्सो.
what it has been given in detail, the definition of sale and agreement to sale. What it says, in sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer immediately. Property in the goods. Now, what do you understand by property in the goods? Property in the goods का meaning क्या है कि there are two types of property in the goods. One is a general property and one is a special property. That is an ownership and physically delivery of that particular goods. अगर goods मैं आपके हवाले कर रहा हूँ तो that is called as a physical delivery. तो ये दोनों चीजों को, ओनरशिप को भी और फिजिकली वो गुड्स जो आपके पोजीशन में मैं दे रहा हूं, उनको बोला गया है प्रॉपर्टी इन द गुड्स. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली यानी एट द इंस्टेंस में ट्रांसफर कर रहा हूं. तो ये कब मैं कर सकता हूं, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर दूंगा, पोजीशन जो है आपके हवाले कर दूंगा, या फिर फ्यूचर में भी कर सकता हूँ, लेकिन ओनरशिप में आपके हवाले आज के आज कर रहा हूँ. तो कौन सी चीज की ओनरशिप में इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकता हूँ, जिसका मैं लीगल होना हूँ, और जो चीज आज मेरे पास है, जो दिखाई दे रही है कि ये चीज है, जैसे कि ये माउस जिसका डिलीवरी मुझे आपको देना है, तो ये माउस मैं आपको कब सेल कर सकता हूँ, जब इसका मैं ओनर हूँ और ये गुड्स रेडी है आपको देने के लिए. तो only then I can transfer the ownership of this particular goods to you, otherwise I cannot. अगर ये particular mouse एक कंप्यूटर शॉप पे है तो क्या उसकी ओनरशिप मैं आपको दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि I am not the owner in respect of that goods. तो what sale says? In sale, the property in the goods are transferred from the property in the goods is transferred from the seller to the buyer immediately. The term sale is defined under section 4(3) of the Sale of Goods Act, where under the contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. The contract is called as sale. Property in the goods is transferred from the seller to the buyer. Property का definition भी यहाँ पे we are going to refer, लेकिन for time being property का meaning ये है कि ownership. अगर कोई प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, जनरल और स्पेशल. राइट नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी का यहाँ पे मीनिंग इज विद रेफरेंस टू द ओनरशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स. अगर कोई गुड्स का ओनरशिप में इमीडिएटली अगर किसी को ट्रांसफर कर देता हो तो इट विल बी कॉल्ड एज अ सेल. एग्रीमेंट टू सेल के बारे में क्या बोल रहा है, in an agreement to sale, the ownership of the goods is not transferred immediately. It is not transferred immediately. It will be transferred somewhere in the future. जैसे कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करता हूँ, दो real estate is not covered under the Sale of Goods Act because real estate is an immovable property. But only for the purpose of understanding this element agreement to sale, I am giving you the reference of those flats apartment. जैसे कि I am a builder और मैं अपनी जगह पे अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, 12 फ्लैट्स बना रहा हूँ. वो फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और सामने वाला एक बायर मेरे पास खड़ा है और वो मुझे बोल रहा है कि वो एक फ्लैट लेने तैयार है. मैंने उसको बोला कि कॉस्टिंग ऑफ वन फ्लैट इज 50 लाख. तो ही सेज दैट कि इज रेडी टू गिव यू 50 लाख. तो उसने 10 लाख रुपीज एडवांस दिया और मैं उसको सौदा पावती करके दे रहा हूँ. सौदा पावती का मीनिंग यहाँ पे ये है एग्रीमेंट टू सेल. मैं एग्री कर रहा हूँ कि जब ये फ्लैट रेडी हो जाएगा मैं उसका सेल डीड आपको बना दूंगा. दैट मींस आई एम टू सेल दैट पर्टिकुलर गुड्स दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी आफ्टर इट इज कंस्ट्रक्टेड. तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली. इट इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली. इट विल बी ट्रांसफर समवेयर इन द फ्यूचर. बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू movable goods and they are not talking about with reference to immovable. लेकिन meaning agreement to sale का with reference to movable and immovable good are almost similar. It is intending to transfer at a future date upon the completion of certain conditions thereon. The term is defined in section 4(3) of the Sale of Goods Act as where the transfer of property in the goods is to take place at a future time
or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell. So what is the difference between contract of sale and agreement to sale? In the case of a contract of sale, the property in the goods, that is an ownership, will be transferred immediately from the seller to the buyer. Whereas in the case of an agreement to sale, the ownership will be transferred somewhere in the future or subject to fulfillment of certain condition. यानी अगर सेलर बोलता है कि आपने अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो देन आई एम गोइंग टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स टू द बायर, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट टू सेल. तो इन द केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप विल नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर, it will be transferred somewhere in the future, so that is called as an agreement. So difference between a contract and an agreement to sale is, contract of sale and agreement to sale is, in the case of a contract of sale, ownership will be transferred immediately. In the case of an agreement to sale, ownership will be transferred somewhere in the future or subject to fulfillment of certain condition laid down by the seller to the buyer. Further, what it says, thus where the contract of sale of goods is an absolute sale, that is immediate sale, or an agreement to sale, depends upon the fact whether it contemplates immediate transfer from the seller to the buyer or the transfer is to take place in at future date. That means how you are going to understand whether it is a sale or an agreement to sale. If the ownership is transferable immediately from the seller to the buyer, it will be termed as sale. When it is transferred somewhere in the future, it will be termed as agreement to sale. Now they have given the definition of all the important terms, and I hope you are aware with कि always the definition will be covered under section 2 of every act. जो भी act आप देखोगे तो section 2 is a part of definition. Now जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो भी नींव रखी गई है, जो भी बेस रखा गया है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया गया है. तो यहाँ पे भी वही सब चीजें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर की गई थी, वही सब चीजें यहाँ पे भी कवर किए गए, सिर्फ उनके नाम चेंज कर दिए गए. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो 2 लोग जरूरी है. 2 लोग, एक पर्टिकुलर पर्सन खुद के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता है. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, जरूरी है. जैसे कि ऑफरर एंड एक्सेप्टर, तो उसी तरह यहाँ पे भी 2 लोगों की जरूरत है. वन इज अ बायर एंड वन इज अ सेलर. वन पर्सन कैन नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ. इन द सेम मैनर a single person cannot enter into a contract. There has to be 2 parties, एक लेने वाला और एक बेचने वाला. That is a buyer and a seller. तो who is a buyer? Buyer means a person who buys or agrees to buy. It is a simple meaning. You are aware with that. Who is a buyer? जो लेता है या फिर जो ready है कि वो लेगा, तो that is called as a buyer. And who is a seller? A person who sells or agrees to sell. Now, what is very important under the contract of sale is the definition of goods. There are various questions they have asked on goods. What is a goods? So we try to understand in details, and that is the crux of study for today's lecture. What it says, what is a goods? Good means every kind of a movable property other than actionable claims and money. Try to understand each and every term of this definition. Every kind of a movable property. स्टार्टिंग में बता दिया कि गुड्स सभी मूवेबल गुड्स को कवर करता है, इमूवेबल गुड्स को कवर नहीं करता है. लेकिन क्या छोड़ के? इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के. और क्या छोड़ के? वो बोल रहा है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. तो दीज 2 थिंग्स, मनी, यू आर अवेयर विथ व्हाट इज अ मनी? जो लीगल टेंडर है, जो आज की तारीख में आपके इंडिया की करेंसी है, वो करेंसी जो आज लेन देन में इस्तेमाल होती है, जिसको आप लीगल टेंडर बोलते हो, तो दे आर कॉल्ड एज अ मनी. यहाँ पे इंडियन लीगल टेंडर की बात कर रहा है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन लीगल टेंडर. वी आर हियर टॉकिंग अबाउट इंडियन लीगल टेंडर, यानी आज की तारीख में जो करेंसी मार्केट में इंडिया में चलती है, रुपया जिसको अपन बोलते हैं, तो वो गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा. दो इट इज ए मूवेबल थिंग्स. आप पैसों की लेन देन करते हो तो वो मूवेबल है,
लेकिन वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। वो गुड्स को परचेज करने का एक यूनिट है, तो वो मनी विल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। लेकिन जो लीगल टेंडर नहीं है, यानी आज की तारीख में जो करेंसी इंडिया में नहीं चलती है, जैसे कि पुरानी 500 रुपीज की नोट, पुरानी 1000 रुपए की नोट, या फिर पुराना 1 आना, 2 आना, 5 आने, जो आज की तारीख में एंटीक हो गया है, तो दैट पर्टिकुलर एंटीक विल बी कॉल्ड एज अ गुड्स। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे अगर देखोगे तो वो पुराना 1 आना, 2 आना आपको 20-30 रुपीज में, बहुत सारे लोगों को एंटीक मनी से करने का एक हॉबी होता है। दे मेक द पिक्चर्स ऑफ दैट, वो अपने बुक्स पे अफिक्स करते हुए बोलते हैं कि ये मेरे पास एंटीक मनी है, तो वो एंटीक मनी विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। बट जो लीगल टेंडर मनी है आज की तारीख में, जो इंडिया में रुपया चल रहा है, जो आज 2000 रुपीज की नोट चलती है, 500 रुपीज की नोट चलती है, 200 रुपीज की नोट चलती है, तो दे विल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, बराबर। लेकिन जो करेंसी पुरानी है, जो आज लीगल टेंडर नहीं है, जैसे कि अपने मोदी जी ने 8 नवंबर को रात में आके बोला था कि ये लीगल टेंडर रात में 12 बजे के बाद नहीं रहेगा, बराबर। तो उसका मीनिंग ये था कि वो पर्टिकुलर मनी जो है वो क्या हो गया, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू गुड्स, क्योंकि वो अब लीगल टेंडर नहीं है, इट गॉट कन्वर्टेड। उसी तरह एंटीक पुराना जो पैसा है, 1 आना है, 2 आना है, अपने जो परदादा या फिर एंचेस्टर जो पैसा यूज करते थे, लेकिन आज वो आप मार्केट में किसी के पास लेके जाओगे और बोलेंगे कि मुझे 1 किलो चावल दो, तो वो आपको वहां से भगा देगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर आज नहीं है। उसी तरह 500 रुपया का पुराना नोट जो है अगर आप आज लेके जाते हो तो आपको अंदर कर देंगे, क्योंकि आज वो लीगल टेंडर नहीं है, और कुछ सालों बाद वो 500 और 1000 रुपीज की नोट हो जाएगी एंटीक। तो आज की तारीख में उसे बोला गया है इट इज अ गुड्स। लेकिन जो चलने वाला मनी है, जो आप मॉनेटरी एक्सचेंज करते हो, यानी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो चीज अगर आप आपके नोट को देखोगे तो उस पर लिखा हुआ होता है, इफ यू रिफर दैट इट इज रिटन, इफ आई सी माय दिस 200 रुपीज नोट, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस 200 रुपीज नोट, द वर्ड हैज बीन रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर नोट। मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 200 रुपीज। और उस पे क्या लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देखोगे तो उस पे लिखा हुआ है guaranteed by the central bank. So this kind of a note is called as a legal tender. It is called as a legal tender. Fine. तो जो legal tender नहीं है, जो एंटीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज को आप गुड्स बोल सकते हो, लेकिन जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो मनी है, उसको आप गुड्स के डेफिनेशन में वो कवर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्शनेबल क्लेम्स, यानी जैसे जिसके ऊपर अगर आपकी डेप्ट बाकी है और वो डेप्ट आपको वसूल करना है, और वो अगर पैसा नहीं देता है तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम्स। जिस क्लेम के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, तो हालांकि अगर सपोज मेरे पास स्टॉक है तो वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि मैं उसको बेच के पैसा कमा रहा हूं, दैट इज स्टॉक इज अ गुड। लेकिन कोई डेटर्स है जिससे मुझे पैसा वसूल करना है, तो दैट डेटर्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेब्ट, कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ गुड्स। In legal language, they are called as an actionable claims. So what it says, goods means every kind of a movable property. Movable property को डिटेल में they have given कौन कौन सी चीजें movable property they have covered. Other than actionable claims and money, and include stock, shares, growing crops, grass, thing attached to or forming part of land. क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहा है? इट इज इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक का यहाँ पे मीनिंग क्या है? अ बल्क ऑफ शेयर्स, यानी अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज अ शेयर्स, एंड अ बल्क ऑफ यूनिट जैसे कि 10 शेयर्स विल बिकम अ स्टॉक। तो एक पर्टिकुलर बंच ऑफ शेयर्स आर कॉल्ड एज अ स्टॉक। तो वो क्या बोल रहा है कि इट इंक्लूड्स, यानी गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम्स और मनी कवर नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी कवर है। उसके अलावा इन चीजों को भी मूवेबल प्रॉपर्टी बोली गई है। वो क्या है? स्टॉक, वो है शेयर्स, वो है ग्रोइंग क्रॉप्स। जो आपके खेत में ग्रोइंग क्रॉप्स है उसको उन्होंने बोला है कि दे आर गुड्स,
लेकिन उसके बारे में एक चीज क्या बोली गई है, growing crops, grass or things attached to forming part of land which are agreed to be severed before the sale or under the contract of sale। यानी जो चीज आपके धरती से, अर्थ से जुड़ी हुई है, which are attached to be attached with the land will be called as goods। कब वो गुड्स बोले जाएंगे, जब उसके बारे में क्या बोला गया है, which are agreed to be severed, severed यानी कट, which are agreed to be severed, which are agreed to be cut before sale or under the contract of sale। यानी अगर मुझे उन चीजों को गुड्स बोलना है तो वो कटे हुए होना चाहिए। क्रॉप्स, ग्रास शुड बी कट, शुड बी सीवियर। अगर वो कट के साइड में रखे हुए तो देन दे आर कॉल्ड एज अ गुड्स, और उस गुड्स के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर सकते हो। लेकिन जो अटैच विद द लैंड है तो वो जब तक गुड्स नहीं बोले जाएंगे जब तक उनको आप अर्थ से, जमीन से अलग नहीं कर देते। जैसे कि टिम्बर ट्री है, टिम्बर ट्री को गुड्स कब बोलेंगे, जब वो ट्रीज को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने से पहले आप कट कर देते हो, विच आर एग्रीड टू बी सीवियर बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ व्हाट दे आर गिवन, एन एक्शनेबल क्लेम इज अ क्लेम टू एनी डेब्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जिसके अगेंस्ट में आप क्लेम दाखिल कर सकते हो, यानी कोई जिसका पैसा बाकी है उसके अगेंस्ट में आप क्लेम डाल रहे हो, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो दे आर कॉल्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जो है वो गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं है। फर्दर मनी डेब्ट, बुक डेब्ट, बुक डेब्ट इज नथिंग बट सन्नी डेटर, जो एक्शनेबल क्लेम्स में भी आ सकते हैं। Money here mean a legal tender of money that is recognized circulation in the country but not old rare coin। जैसा मैंने आपको बोला, एक आना, दो आना, they can be called as a goods। लेकिन जो लीगल टेंडर है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, they cannot be called as a goods। Thing attached to the earth are not movable but trees, growing crop which can be easily severed, which can be easily severed यानी which can be easily cut from the earth before sale, they can be termed as goods। Now here they have given the example of all goods. What they have covered, fruits, vegetables, flowers which can be separated from the trees are included under the goods। So these fruits, vegetables can be termed as goods। Livestock, that is cows, buffaloes, cats, etc. are goods, they are also covered। वो आप देखते होंगे कि बकरी पे आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा बहुत सारा मार्केट जहाँ पे बकरे बिक रहे थे, तो those livestock are also called as a goods। Then there is a patent, copyright, goodwill, trademark। These are intangible goods but they are covered under the definition of goods। You cannot see these things। गुडविल आप देख नहीं सकते, गुडविल इज अ रेपुटेशन। पेटेंट आप देख नहीं सकते हो बट दे आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। दैट मीन्स दैट कि जो भी प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के है, ऑल दोस प्रोविजंस आर इक्वली एप्लीकेबल टू intangible goods also are considered goods which can be the subject matter of the contract। A ship has also been considered to come within the definition of goods। This is also very important। Ship, जो आपका ship ओशन में चलता है, जो आपके पानी में चलता है, तो they are also covered within the definition of good। Similarly, water, gas, electricity are included in the definition, though some writers doubt if they can be classed among the goods। We are not bothered about those writers, but what the contract of sale of goods act says that कि sale of goods act में goods के definition के अंदर पानी, बिजली बराबर और गैस, ये चीजें भी आपके गुड्स के डेफिनेशन में। जैसे कि आप देखते हो कि पानी पट्टी जिसको अपन बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वाटर का बिल आता है, गैस का बिल आता है, तो उन्होंने अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस पे जीएसटी लग के आता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसको भी उन्होंने गुड्स के डेफिनेशन में कवर किया है। आप जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वहां पे जो गुड्स का डेफिनेशन है, उस गुड्स के डेफिनेशन को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के गुड्स के डेफिनेशन में से ही पिक किया गया है। तो इसीलिए उन्होंने बोला गया है कि वाटर,
electricity, gas is also termed as goods under the Sale of Goods Act. All rare coin, stock, shares, debentures are also goods. These are also goods. Shares, debentures are also termed as goods. तो कुछ चीजें इजीली समझ में आती है कि ये टीवी है, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, they are goods. But there is interesting to note that के intangible goods, agricultural goods and certain things which we daily use, daily needs such as water, gas, electricity are also termed as goods. What is not termed as goods are legal tender and actionable claims. फॉरेन करेंसी इज टर्म्ड एज गुड्स क्योंकि वो इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है. दैट मीन्स वो यहाँ पे जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है. जैसे कि अगर आप दिनार कोई दुकान पे लेके जाते हो और बोलते हो कि यहाँ पे मेरे को 5 किलो चावल दो, और आप उसको दिनार जो सऊदी की करेंसी है उसको निकाल के आप देते हो तो वो नहीं लेगा. जापानीज येन अगर कहीं ले जाके देते हो तो वो नहीं लेगा क्योंकि वो इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है. तो अगर वो लीगल टेंडर नहीं है तो वो गुड्स के डेफिनेशन में कवर है. जैसे कि देयर आर ऑथराइज्ड सेंटर्स, ऑथराइज्ड एजेंट, they are authorized to exchange the currency. What they do is कि अगर सपोज मुझे कोई फॉरेन का कंटेनर मंगाना है और मुझे उसको डॉलर में पेमेंट देना है तो they will take Indian rupee and they will give you foreign currency और उस पे they will charge the commission. तो फॉरेन करेंसी यहाँ पे वो बेच रहा है टेकिंग इंडियन रूपी, तो दे कैन बी टर्म्ड एज गुड्स. बराबर. व्हाट फर्दर इट सेज, as per English law shares and stock are not treated as goods. Try to remember English law के हिसाब से shares, bunch of shares are called as a stock. तो stock and shares are not covered under the English law, लेकिन Indian law में stock और shares को goods के definition में cover किया गया है. तो मोटा मोटा ये क्या बोलता है अपने को, टू कंक्लूड एवरीथिंग मूवेबल इज गुड एक्सेप्ट मनी, एक्शनेबल क्लेम्स, इमूवेबल एसेट एंड सर्विसेज. तो ये चीजें गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा. तो गुड्स का generally there is a short question generally asked in the examination as regards to goods. So try to remember what is a goods. So here once again we will revise what they have given. Goods means every kind of a movable property other than actionable claims and money, and include stock, shares, vegetables, growing crop, grass, thing attached to or forming part of land which are agreed to be severed बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो यहाँ पे इस तरीके से इसको गुड्स को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2(7). ट्राई टू रिमेम्बर दिस एंड ऑल द बेसिक कंडीशन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एप्लीकेबल है वही सब चीजें यहाँ पे भी कवर किया गया है. इसको धीरे धीरे वी आर गोइंग टू कवर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. And detail may we are going to cover in the next lecture. Bye everyone.